back to the channel. We were doing Venn diagrams and today we are going to do advanced problems in Venn diagram. So our first problem is, our school awarded 58 medals in 3 sports, namely 38 in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If 3 students got medal in all 3 sports, how many received medal in exactly 2 sports? Now, very first thing you need to consider the set. आपको 3 सेट दिए हैं. First set A is number of students who get medal in football, right? Similarly, B is students who get medal in basketball, and C students who get medal in cricket. So NA means number of students in set A. कितने हुए आपके पास? This is 38. Similarly, NB is 15 and NC is 20. Now, look at the problem. You are given 2 more things. Number 1, 58 medals, and number 2, 3 students who get medal in all the 3 sports. First is 58 medals was distributed in all. तो total 58 medals distribute किए गए हैं. इसका मतलब ये है कि A, B, C में जो complete distribution है वो 58 medals का है. इसका मतलब N A union B union C is 58 and N A intersection B intersection is equal to 3. That means 3 students got medal in all 3 sports. There are 3 students who got medal in all the 3 sports. That means एक student आता है उसको तीनों sport में medal मिलता है. That means he is receiving medal in football, in basketball as well as in cricket. So let's make a Venn diagram. Now we make a rectangular box which is universal set. Right? This is set A, this is set B and this is set C. First of all, we will start with this common portion. सबसे पहले हम common portion से शुरू करते हैं. N A intersection B intersection C is equal to 3. Always remember, आपको जब भी Venn diagram से question को करना है, आपको हमेशा common portion से question को करना शुरू करना है. 3 is the number of students who get medal in all the 3 sports. और total students आपके पास हैं 58, right? अब हम 58 को कैसे distribute करें? हमें मालूम है set A में 38 students हैं. 38 का मतलब यह है कि ये total 38 है. Let us discuss first this diagram, right? ये क्या portion है? This I. This is the common portion of set A and set B. This is the common portion of A and C, and this is the common portion of B and C, and this is the common portion जो A, B और C तीनों के पास है, right? अब अगर हम ये कहते हैं ये A और B का common portion है, suppose ये हमने A suppose करा, ये B और ये C, और इधर हम suppose करते हैं X, इधर Y और ये Z. ये जो मैंने suppose किया है ये क्या है? A क्या कौन सा नंबर है? A is the number of students who get medals in sport A and sport B. Sport A आपके पास है फुटबॉल और sport B आपके पास है बास्केटबॉल. इसके अंदर हम एक शब्द लगाएंगे only. खाली A और B में. देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो था आप कहेंगे ये है common portion. अगर हम इसको लेते हैं तो ये A+3 है. A+3 का मीनिंग ये हुआ कि number of students who got medal in football and basketball, right? और अगर मैं A के बारे में लिखूं तो A है number of students who got medal in sport basketball and football only. Only शब्द का फर्क पड़ता है इससे. देखिए, तो अब हम डाटा लिखते हैं. सबसे पहले A is equal to क्या है? number of students. ये आपने सपोज किया number of students who got medal
and basketball only. Similarly, B is, this only word is very important. Number of students who got medal in football and cricket only. C is number of students who got medal in basketball and cricket only. Right? A B C का तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, X Y Z का हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया. Let's give a description. X is number of students who got medal in football only. Football only. What is X? X is this portion. This portion is X. This portion is X. This portion is X and ये पूरा पोर्शन A है. This is A. और अगर आप ओनली ए की बात करेंगे तो ओनली ए का मतलब है आप उनमें से कॉमन पोर्शन बी और सी के हटा देंगे. Y is the number of students who got medal in basketball only. Z is the number of students who got medal in cricket only. अब आप देखिए आपको क्या क्या गिवन है. आपको गिवन है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3, उसको आप यूज कर चुके हैं. आपको मालूम है एन ए कितना है आपके पास 38. व्हाट डू यू मीन बाय एन ए? एन ए मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए. व्हाट डू यू मीन बाय सेट ए? दैट मीन्स हु प्ले फुटबॉल. हु प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स अब आपको मालूम है फुटबॉल का मतलब क्या हुआ? सेट ए. सेट ए का मतलब है आपके पास x प्लस a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 38. अगर हम ये लिखते हैं एन ए इज इक्वल टू 38, दैट मीन्स दिस. राइट? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब हम जाते हैं बास्केटबॉल पर. बी फॉर बास्केटबॉल एंड y प्लस a प्लस c प्लस 3 इज इक्वल टू 15. y प्लस a plus c plus 3 is equal to 15. And third one was cricket. 20 play cricket. So z plus b plus c plus 3 is equal to 20. X plus a, adding all the variables. क्योंकि 58 आपके पास टोटल मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है. तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं आपके पास है x प्लस a प्लस b प्लस y प्लस c प्लस z प्लस 3, राइट, इज इक्वल टू कितना है आपके पास 58. एक बार चेक कर लेते हैं. x प्लस y प्लस z a प्लस b प्लस c प्लस 3 इज इक्वल टू 58. अब आपके पास कितनी इक्वेशन है? 1 2 3 एंड 4. आपको फाइंड आउट क्या करना है? आप ध्यान दीजिए. आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स? एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि जिन्होंने केवल 2 ही स्पोर्ट में मेडल लिए हैं. आप कहेंगे ये तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन वेन डायग्राम में ऐसा कौन सा रीजन है जो इस बात को डिपिक्ट करता है? तो ये है आपके पास a प्लस बी प्लस सी. a प्लस बी प्लस सी. a मैंने आपसे बोला था वो बच्चे हैं जिन्होंने रिसीव किया है मेडल ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में. ओनली का मतलब हुआ एग्जैक्टली इन 2 स्पोर्ट, दैट इज फुटबॉल एंड basketball. B, number of students who got medal in football and cricket only. Cricket, that means exactly in 2 sports, football and cricket. Similarly, C आपके पास है number of students who got medal in basketball and cricket only. That means in exactly 2 sports. तो 2 स्पोर्ट करे आपने A, B और C. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है A, B, C. अगर क्वेश्चन के अंदर जो आपको गिवन है और जो पूछा गया है वो फ्रेम ही ऐसे हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे आप A प्लस बी प्लस सी आराम से निकाल सकते हैं. जरा देखते हैं. अगर हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? ध्यान से देखिए. x प्लस वाई प्लस जेड तो हमें मिल ही रहा है, हम लिख देते हैं. और अगर हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें a एंड a 2 टाइम्स, b एंड b 2 टाइम्स, c एंड c 2 टाइम्स, सो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c. 3 आपने 3 बार ऐड किया है तो आपके पास कितना आ गया? 9. और जब आप इधर ऐड करते हैं आप ध्यान से देखिए
8 and 5 and 0 आपने ऐड किया, आपके पास आया 13, 3 कैरी 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, दिस इज 73, राइट। आपने कहा आपने ऐड किया है इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को। अब आपने बहुत ध्यान दिया कि आपके पास वैल्यू आई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। 73 में से आपने 9 सब्ट्रैक्ट किया, 73 माइनस 9 आपके पास हुआ 64। अब आप इसको भी अरेंज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 4 को। आपके पास है फ्रॉम 4 आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 4 x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a प्लस b प्लस c, राइट। 58 माइनस 3 आपने किया, 58 माइनस 3 हुआ 55। सब्ट्रैक्ट किया आपने x प्लस वाई प्लस जेड, आपका सब कैंसिल हो गया। ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c में से जब वन टाइम ऑफ a प्लस b प्लस c सब्ट्रैक्ट हुआ, you will get one time of a plus b plus c, which is equal to 9. 9 is the number of medals which was distributed exactly in 2 sports. तो लिख देते हैं number of medals distributed exactly in 2 sports. This is equal to 9. This is our required answer. Now one more thing. आपके पास 9 आया क्या कि वो बच्चे जिन्हें एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मिले। अगर आपसे कोई कहता कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेडल्स दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली इन 1 स्पोर्ट, ये जो पोर्शन है ये मैं आपको अपनी तरफ से करा रही हूँ। एग्जैक्टली इन 1 स्पोर्ट का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स एग्जैक्टली इन 1 स्पोर्ट मीन्स only in football, only in basketball and only in cricket. That means value of x plus y plus z. आपको x plus y plus z का वैल्यू निकालना है, तो x plus y plus z आप कैसे निकाल सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, आपके पास जो आपने इक्वेशन नंबर 4 फ्रेम की थी, इसको ठीक करके x plus y plus z plus a plus b plus c was 55, आप x plus y plus z आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ आपके पास 55 माइनस 9, 55 माइनस 9 आपके पास हुआ 46, राइट। तो इस तरह से आप गिवन डाटा से ये निकाल सकते हैं। सपोज देयर आर 3 सेट्स, 3 इंटरसेक्टिंग सेट्स आर देयर। दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ a, b and c, and suppose its value is a, right, and here b is written, here c is written and here d is written. तो अगर कोई आपसे कहे कि a और b, a एंड b का कॉमन पोर्शन क्या है, इंडीड आपके पास ये वाला कॉमन पोर्शन b प्लस a है, बट इफ वी टॉक अबाउट ओनली a एंड b, कॉमन पोर्शन ऑफ ओनली a एंड b, तो वो b है, एंड कॉमन पोर्शन ऑफ a एंड b, तो वो आपके पास है a प्लस b। यानी अगर मैं आपसे कहूँ n a इंटरसेक्शन b, तो वो आपके पास है a प्लस बी। और ओनली a एंड b का मतलब हुआ जो जिसके अंदर आपके पास c इंक्लूडेड नहीं है, ओनली a एंड b की बात हो रही है, देन दिस पोर्शन इज b ओनली। आप ये समझिए, अगर आपको इतना पॉइंट समझ में आया है तो आपको आगे के क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, और अगर लास्ट क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो वो भी क्लियर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रॉब्लम। In a town of 10,000 families, it was found that 40% of the families buy newspaper A, 20% buy newspaper B, 10% buy newspaper C, 5% buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% buy all the 3 newspapers, find the number of families who buy A only, B only, and none of A, B, C. So, as we did earlier, consider A is set of families who buy newspaper A, B set of families who buy newspaper B, and C set of families who buy newspaper C. And A, 40% of 10,000. 40% of the families buy newspaper A. और टोटल आपके पास जो पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है आपके पास 10,000, राइट। अब अगर आप अपना डाटा कलेक्ट करें तो आपके पास 10,000 तो टोटल फैमिलीज हैं,
40% न्यूज़पेपर ए बाय करते हैं, 20% न्यूज़पेपर बी, 10% न्यूज़पेपर सी, 5% ए एंड बी, 3% बी एंड सी। तो इस तरह से हमको सबसे पहले अपना डाटा कलेक्ट करना है। सो एंड ए कितना हुआ, अगर हो सकता है कि ये क्वेश्चन हम सारा परसेंटेज में भी कर लें और 10,000 को लास्ट में यूज करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो शुरू में ही आप परसेंटेज को नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड बी आपके पास है 20% बाय न्यूज़पेपर बी, तो 20% ऑफ 10,000, राइट, आपके पास आ गया 2,000। परसेंटेज को आप समझते हैं, 20% का मीनिंग 20/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 0 आपके पास आ जाएंगे। एंड सी इज 10% ऑफ 10,000, सो यू विल गेट 1,000। अब आपको गिवन है 5% बाय ए एंड बी, यानी कि द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर ए एंड बी बोथ। सो एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 5% ऑफ 10,000 and 5% of 10,000 is 500. Similarly, and B and C, and B and C is 3% of B and C. 3% means 3% of 10,000. This is 300, and 4% of A and C is 400. Right? 2% by all the three newspapers, यानी कि आपको N A intersection B intersection C आपको given है 2%. That means 2% of 10,000 हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये आपके पास 200 है। As we did last question, we'll make Venn diagram. Now a little bit quick way. आपने A B C ले लिया, राइट? उसके बाद आपको अच्छी तरह याद है कि हम अपना वेन डायग्राम कंप्लीट करना कहाँ से शुरू करते हैं, बिल्कुल कॉमन पोर्शन से। ए बी सी का पोर्शन आपके पास है 200, आप 200 लिखेंगे। उसके बाद ए एंड बी आपको 500 गिवन है, ये आपके पास पूरा 500 लोग हैं जो ए एंड बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ये पोर्शन है जो केवल ए एंड बी पढ़ते हैं। यानी कि अगर हम ए और बी लेते हैं तो कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो ए बी तो लेती हैं, साथ में थोड़ा सा सी न्यूज़पेपर भी, थोड़ी फैमिलीज ऐसी हैं जो थोड़ा न्यूज़पेपर सी भी लेती हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 300, क्योंकि आपने 500 में से 200 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये पोर्शन है ओनली ए एंड बी का। अब आते हैं ए एंड सी पर। ए एंड सी आपको दे रखा है 400, यानी कि ये पोर्शन आपके पास 400 है। ओनली ए एंड सी आपके पास 200 हुआ, क्योंकि 400 में से 200 आपने सब्ट्रैक्ट किया। बी एंड सी आपको गिवन है 300, 200 बी एंड सी आपके पास है, तो बी एंड सी आपके पास 200 है। एक्चुअली 200 आपके पास ए बी एंड सी है, तो इधर आपके पास आ गया ओनली बी एंड सी इज 100, राइट? अब आप निकालने जा रहे हैं ये वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये कहलाता है ओनली ए। ये वो लोग हैं जो केवल न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, ना बी लेते हैं ना सी लेते हैं। तो आपको पता था टोटल लोग जो हैं वो 4000 हैं जो ए न्यूज़पेपर लेते हैं। उनमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके घर में न्यूज़पेपर बी भी आता है, न्यूज़पेपर सी भी आता है। हम उन लोगों को हटा देंगे, तो ये हमारे पास ओनली ए का पोर्शन है। ओनली ए का पोर्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास है 4000 में से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 300, 200 एंड 200, यानी कि 3 and 2 5, 5 and 2 7 आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आ गया 3300, राइट? सिमिलरली बी आपके पास 2000 है, 2000 से आपने 600 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आया 1400। सिमिलरली सी आपके पास टोटल 1000 है, आपने सब्ट्रैक्ट किया 500, आपके पास आया 500। अब अगर आपने ये डाटा भर लिया है जिसमें कोई हमें इक्वेशन नहीं बनानी थी, डायरेक्ट हमें काम करना था, अब हम अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही स्ट्रोक में दे सकते हैं। नंबर 1 आंसर आपको चाहिए ए ओनली, नंबर ऑफ फैमिलीज हु रीड न्यूज़पेपर ए ओनली। तो आपने वेन डायग्राम को देखा, तो ए ओनली का आंसर है आपके पास 3300। बी ओनली का आपके पास आंसर हुआ इन द सेम वे, नंबर ऑफ फैमिलीज हु रीड न्यूज़पेपर। यहाँ पे आपने लिख देना है ए ओनली, और यहाँ आपने लिख देना है नंबर ऑफ फैमिलीज हु रीड न्यूज़पेपर
B only, this is 1400. And अब आपको थर्ड पार्ट जो है नन ऑफ ए बी एंड सी, नन ऑफ ए बी एंड सी का मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं जो ना न्यूज़पेपर ए लेते हैं, ना न्यूज़पेपर बी लेते हैं और ना न्यूज़पेपर सी लेते हैं। तो वो कौन से लोग हैं, ना वो इस सेट में है, ना इधर है, ना इधर है, तो जाहिर सी बात है वो आउटसाइड लाई करते हैं। अब आउटसाइड लाई जो करते हैं उन लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फैमिलीज हु रीड नन ऑफ न्यूज़पेपर ए बी और सी। तो ये हमने कैसे निकालना है, आपके पास टोटल कितने थे लोग, आपको पता था टोटल फैमिलीज हैं 10,000। 10,000 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना भी डाटा आपके सामने लिखा है। हो सकता है स्टूडेंट्स ये सोचें कि क्यों ना हम ए बी और सी को सब्ट्रैक्ट कर दें। नो, यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि ये ए ओनली नहीं है, 4,000 में बी और सी इंक्लूडेड है, डबलिंग हुई है डाटा की। बी के अंदर वो लोग भी हैं जो ए और सी पेपर पढ़ते हैं, सी ओनली सी नहीं है, सी का मतलब है 1000 लोगों में वो भी है जो बी और सी पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारा डाटा हमने ओवरलैप कर रखा है। देखिए हमें इसे कैसे करना है, हम इन सबको आप ऐड करेंगे तो ऐसे होगा, एंड ऑन एडिंग दिस वी गेट 6000, 10,000 minus 6000 will give you 4,000. So all the three parts are here. Number of families who read newspaper A only 3,300, number of families who read newspaper B only 1,400, and number of families who read none of the newspaper A, B or C, this is 4,000. I'm taking third question now, and this is a class has 175 students. The following description gives the number of students studying one or more of the subjects in the class. So mathematics 100, physics 70, chemistry 46, mathematics and physics 30, mathematics and chemistry 28, physics and chemistry 23, and don't forget and means intersection. Mathematics, physics and chemistry is 18. Find how many students are enrolled in maths alone, physics alone and chemistry alone. And your second portion is how many students have not offered any of the subject. Let us consider sets now. M is the set of students who offered maths, P is the set of students who offered physics, and C is the set of students who offered chemistry. Now the data is NM 100. NM means number of students who have maths 100. Similarly NP is 70 and NC is 46. And M intersection P, that means mathematics and physics, this is 30. Number of students who offered maths and chemistry 28. Number of students who offered physics and chemistry 23. And number of students who offered all the three subjects mathematics, physics and chemistry is 18. Now let's start to fill the data in Venn diagram. So we will start with the common portion. What will happen if common portion is missing? अभी तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन लिया नहीं जिसमें common portion हमारे पास ना हो। अगर ऐसा है कि आपके पास ये डाटा ना दिया हो कि कितने बच्चों ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया, तो हम हमेशा करेंगे तो यहाँ से शुरू, मिडिल पोर्शन से शुरू करेंगे, इसको हम x सपोज कर लेंगे, ठीक है। और अगर मेरे को मान लो सपोज ये पोर्शन 10 दिया हुआ है, तो इधर हमारे पास ओनली m एंड p आ जाएगा 10 माइनस x। सो हमको तो डाटा दिया है 18 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 18, राइट। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपको दिया था 830, दिस होल पोर्शन आपको दिया था 30 माइनस 18 आपके पास हो गया 12, राइट। सिमिलरली m एंड c वाज 28, और 28 में से आपने 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास बचा 10। इसी तरह से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था 23 में से आपने 18 सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 5। अब टोटल मैथमेटिक्स आपके पास है 100, राइट। अब 100 में से आपने 10 प्लस 18 प्लस 12 आपने सब्ट्रैक्ट किया, यू आर लेफ्ट विथ 60, क्योंकि 18 और 20 हुआ 30 एंड 40, राइट। अब आपको फिजिक्स का फाइंड आउट करना है। फिजिक्स में आपके पास थे टोटल लोग 70 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 18 प्लस 12 प्लस 5, सो दिस इज 35। एंड केमिस्ट्री में टोटल आपके पास है 46
46 है, तो 46 में से 10 प्लस 18 प्लस 5 आपने सब्ट्रैक्ट किया, यू आर लेफ्ट विथ 13। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिलता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथ्स अलोन। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम अपने आंसर लिखने शुरू करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हुआ मैथ्स अलोन में कितने बच्चे एनरोल हुए 60, फिजिक्स अलोन में 35 एंड केमिस्ट्री अलोन में 13। बस हमें ये डाटा का आंसर ही देना है डायरेक्ट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथ्स अलोन आपके पास आया 60। सिमिलरली फिजिक्स अलोन आपके पास आ गया 35 एंड केमिस्ट्री अलोन इज थर्ड, जो आपके पास सेकंड पार्ट है। जैसा आप जानते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ कि वो बच्चे जो उनके पास ना मैथ्स है, ना फिजिक्स है और ना केमिस्ट्री है, यानी कि इन तीनों सेट में से कहीं नहीं है। अगर इन तीनों सेट में से वो नहीं है तो वो कहाँ है, वो लोग बाहर हैं। और टोटल आपके पास यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है 175। 175 आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा 175 माइनस 60 प्लस 12 प्लस 35 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 13, आपने पूरा डाटा जो है ले लिया और 175 यूनिवर्सल सेट है आपके पास। टोटल कितना 175 में से आपने ये माइनस किया, आपके पास आया 32, यानी कि 32 स्टूडेंट्स आपका वो स्टूडेंट है जो ना सेट ए में है, ना सेट बी में, ना सेट सी में, हु हैज नॉट ऑफर्ड maths, physics and chemistry, any of the subject. So this is 32. That's all for this exercise today and I hope you have understood this. So we will meet again and do the next chapter. Till then, bye bye, and don't forget to share your views and ask any doubt in comment box. Till then, bye bye.